all my viewers. Today, now I am going to solve CET Group D exam which was conducted in the evening session. This paper was conducted by HSC today. In this paper, there are 100 questions, and out of these 100 questions, there are 10 questions based on English subject. I am going to solve all the questions which are of English language. English language questions are just very common on common grammar topics like activize, passivize, narration, then antonym and synonyms are there, and some questions are based on vocabulary also. Students, I have already made many videos on these topics on my channel Easy English NCERT Learning with Chandrapal. You can watch these all topics in detail if you want to crack this exam. Now, without wasting, let's come on question number 56. Question number 56. Choose the alternative which best express the given sentence in activize. So, a passivize sentence is there. You have to change it into passivize. So, passivize sentence is given. You have to choose passivize. The invitation card will be sent today. Okay, now in the passivize will be is given. So, in your answer, will be there. Okay, they will be sending the invitation card today. They will send the invitation card today. They will send the invitation card today, and they will have sent the invitation card today. And if you want to leave this question, you have to tick option number 5. So here in this question 50 number 6, second option is correct. They will send the invitation card today, and its passivize will be the invitation card will be sent today by them. Okay, you can leave by them. Okay, now question number 57. Choose the most appropriate alternate to fill in the blanks. The noise comes from the river. Okay, now in this question there is a mistake because you have to fill preposition. Okay, preposition ही भरनी है, but one additional preposition from is already given. Okay, so here from is not required. Okay, examiner must not give the word from. Okay, you can demand grace for that क्वेश्चन आल्सो. मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सबको ग्रेस भी मिलना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक की गई है. लेकिन अगर फ्रॉम नहीं आता तो द नॉइस कम्स अक्रॉस द रिवर. ओके, आवाज़ है वो नदी के पार से आ रही थी. तो ये आपका फ्रॉम है वो क्वेश्चन मिस्टेक किया हुआ है. दोनों प्रेपोजिशन साथ है वो नहीं आ सकती. नाउ क्वेश्चन नंबर 58. फाइंड आउट करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको इनडायरेक्ट स्पीच है वो बताना है. तो योर सेंटेंस इज ही सैड डू यू नो जर्मन. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका आंसर होगा इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर वो हमेशा ही पास्ट टेंस के अंदर होगा. रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस के अंदर होती है. तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है और ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो इफ़ है वो आएगा ही आएगा. ठीक है, अब आपको थर्ड ऑप्शन है उसमें इफ़ लगा ही नहीं रखा तो थर्ड ऑप्शन तो आपका आंसर है वो बिल्कुल ही एलिमिनेट हो गया है. अब क्या है कि आपका यहाँ पर ही सैड उसने ऑब्जेक्ट नहीं दिया तो ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं कि ही सैड टू मी, तो इसको ही आस्क्ड मी. ओके, इंटेरोगेटिव है तो कोमा को हटाने के लिए हम इफ़ लगा लेंगे. इफ़ उसके बाद में हम यू को चेंज करेंगे. यू ऑब्जेक्ट है, यू है वो सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो आई हो जाएगा. अब डू यू नो प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो पास्ट इंडेफिनेट न्यू हो जाएगा जर्मन. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है. ही आस्क्ड मी इफ़ आई न्यू जर्मन. नाउ क्वेश्चन नंबर 59. फाइंड आउट द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच हैज़ एन एरर. ओके, इफ़ ही इज़ ए मिलियनर ए पार्ट है, बी पार्ट है ही वुड हेल्प. ओके, बी पार्ट है, सी पार्ट है दी मिलेनियम प्रोजेक्ट, सी पार्ट है, और डी पार्ट है इन दी फ्यूचर. तो यहाँ पर अनफुलफिल्ड विश की बात की गई है तो ए पार्ट के अंदर ही मिस्टेक है. इफ़ ही वर ए मिलियनर. ओके, इफ़ ही इज़ दिया हुआ है, यहाँ पर वर आएगा तो जो आपका आंसर है वो थर्ड वाला है वो करेक्ट जा रहा है. थर्ड में ए पार्ट आ रहा है. ओके, इफ़ ही वर ए मिलियनर, काश वो यदि वो मिलियनर होता तो वो मिलियनम प्रोजेक्ट के अंदर वो हेल्प करता फ्यूचर के अंदर. नेक्स्ट
फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ अब्सर्ड। अब्सर्ड का आपको एंटोनियम बताना है। तो अब्सर्ड का जो मीनिंग होता है वो होता है इरेशनल या मीनिंगलेस। ओके, इरेशनल या मीनिंगलेस। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेन, सेकंड ऑप्शन है वो रिफ्यूज़, थर्ड ऑप्शन सिली एंड फोर्थ ऑप्शन एंशियस। एंशियस का मतलब चिंतित होता है, डिस्ट्रेस। ओके, डिस्ट्रेस्ड। नाउ यहाँ पर ए ऑप्शन है वो करेक्ट बैठ रहा है। अब्सर्ड का मीन एंटोनियम बनेगा सेन, और सेन का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉट मैड या मेंटली इल। 61. पिक आउट दिस synonym of the underlined word in the following sentence. The cell phone industry has indeed ushered a new phase of communication. Okay, ushered का जो मीनिंग होगा वो होगा हेराल्ड। ओके, जो सेलफोन इंडस्ट्री है वो एक नया सिग्नल है, वो कम्युनिकेशन के अंदर एक नया सिग्नल है वो दे रही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन जो सेकंड है उसका मतलब कोलैप्स, कोई चीज़ है वो गिर जाना होता है। कंप्लीट का मतलब आप जानते हैं गिव अप होता है, छोड़ देना। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है वो हेराल्ड। द सेलफोन इंडस्ट्री हैज़ assured a new phase of communication. तो herald is correct answer here. Herald is synonym of assured. Now question number 62. Fill in the blanks with appropriate options given below. If you dash no confidence in self, you are twice defeated in life. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट जा रहा है। इफ़ यू हैव नो कॉन्फिडेंस इन सेल्फ, यू आर twice defeated in life. Now question number 50, question number 63. Choose the alternative which best expresses the meaning of the underlined idiom. अब idiom के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप है वो मेरे चैनल इजी इंग्लिश NCERT ई लर्निंग विद चंद्रपाल के प्लेलिस्ट में जाकर के वोकेबलरी सेक्शन के ऊपर जाकर के आप उसको देख सकते हो। इंपॉर्टेंट इडियम्स क्या है? कॉट रेड हैंडेड, ये बड़ा सिंपल है, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। यहाँ पर जो ए ऑप्शन है वो है कॉट वेरी लेट, सेकंड है कॉट वाइल डूइंग द क्राइम, थर्ड इज कॉट स्लीपिंग एंड फोर्थ इज कॉट इजीली। नाउ सेकंड इज द करेक्ट आंसर, कॉट वाइल डूइंग द क्राइम, किसी को रंगे हाथों पकड़ना। नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन 64. पिक आउट करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। आपको स्पेलिंग के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप देख लीजिए। इंपॉर्टेंट स्पेलिंग जो पेपर में बहुत बार आती रहती है, मैनिपुलेशन की स्पेलिंग जो करेक्ट बतानी है आपको यहाँ पर। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन वाली स्पेलिंग है वो बिल्कुल करेक्ट है। ओके, मैनिपुलेशन, MANIPULATION, थर्ड इज राइट आंसर हेयर। Now last question of English part. Choose the most appropriate option to fill in the blanks. Many beggars sat dash the wall of the temple. Here A is the right answer. Many beggars sat along the wall of the temple. बहुत सारे भिखारी है वो दीवार के साथ है, वो मंदिर की दीवार के साथ है वो बैठे हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आई हैव सोल्ड इवनिंग सेशन पेपर, मॉर्निंग सेशन पेपर I have already sold, and tomorrow is again this paper, this exam will be conducted in 2 sessions, in the morning as well as in the evening. I have found that there is similarity in questions के अंदर काफ़ी ज़्यादा समानता है। इंग्लिश पार्ट जो मैंने देखा है उसके अंदर कि सेम ही टॉपिक्स के ऊपर हैं वो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जिनका एग्ज़ाम कल है उनको ये वीडियो है वो हेल्प कर सकती है। थैंक यू सो मच एंड all the best to all the एस्पिरेंट्स who have to appear tomorrow in the exam. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर जरूर कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।